वेलकम स्टूडेंट्स टू सभी आईसीएससी बायो। बेटा हमने स्टार्ट किया हुआ है आईसीएससी की क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 सर्कुलेटरी एंड नर्वस सिस्टम। पिछली वीडियो में हमने सर्कुलेटरी सिस्टम किया था, आज हम करेंगे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम एक सिस्टम है जो एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उनको रिसीव करता है और मैसेज सेंड करता है to parts of the body to work appropriate according to the environment and its needs. तो नर्वस सिस्टम जो है it is of two main parts: central nervous system and peripheral nervous system. Peripheral nervous system जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको सीएनएस भी बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम उसको पीएनएस बोलते हैं। एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसके टू पार्ट्स है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। एंड जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इट कंप्राइज ऑफ द नर्व्स। इट इंक्लूड ऑल द नर्व्स आउटसाइड द CNS that link brain and the spinal cord. It includes nerves. Then जो peripheral nervous system है it is further divided into two types: voluntary, which is under our control, involuntary, which is not under our control, not under control, our will or control. So first of all we will start about CNS, central nervous system. It comprises of brain and spinal cord. Brain is protected by cranium and spinal cord is protected by vertebral column. ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की जो मेम्ब्रेन्स हैं उनको मेनिंजेस बोलते हैं। मेम्ब्रेन्स को क्या बोलते हैं? मेनिंजेस। मेनिंजेस, 3 मेनिंजेस हैं: पाया मैटर, ड्यूरा मैटर एंड अरेक्नॉइड मैटर। Brain is the main nerve center of the body. It is a highly specialized organs and composed of neurons. And brain is located in the head and it is protected by skull. Brain is protected by skull. और इसकी 3 मेम्ब्रेन्स हैं जिनको मेनिंजेस बोलते हैं: पाया मैटर, ड्यूरा मैटर एंड अरेक्नॉइड मैटर। ब्रेन के 2 distinct regions हैं. It has grey matter on outside and white matter on inside. और ब्रेन जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है: forebrain, midbrain and hindbrain. forebrain, midbrain and hindbrain. जो forebrain है it has 3 main parts: cerebrum, thalamus and hypothalamus. बेटा ये जो डायग्राम है ये आपने करनी है, आपको लेबलिंग करनी आ सकती है। सेरिब्रम इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये लार्जेस्ट पार्ट है।
It comprises of the two cerebral hemispheres. ये है cerebral hemispheres है. They are joined by thick band of nerve fibers. और इसके न्यूमरस फोल्ड्स होते हैं, जिसके जितने ज्यादा फोल्ड्स होते हैं उसका ब्रेन उतना ज्यादा डेवलप्ड होता है. एंड इट कंट्रोल्स, इट हैज कंट्रोल सेंटर्स फॉर वेरियस एक्टिविटीज. और इसके फंक्शंस आपने 2 फंक्शंस ब्रेन के, हर ब्रेन के पार्ट के करने हैं. 2 फंक्शंस आपने करने हैं, लर्न करने हैं. इट इज एसोसिएटेड विद मेमोरी, थॉट. It receives the impulses from the various parts of the body and it sends messages to the various organs and controls the voluntary activities. Yes, ये voluntary activities जो हमारी will के अंडर होती हैं, will के अंडर होती हैं, उनको कंट्रोल करते हैं. And it is associated with reasoning, intelligence, memory and learning. इनके 2 functions आपने learn करने हैं. Is the largest part और ये labeling आपने learn करनी है. Then is thalamus. This is thalamus. It is present at the center of the forebrain and it has sensory and motor. It sends sensory and motor signals to the appropriate area of cerebrum. Then इसके नीचे है hypothalamus. It is present small region just below the thalamus. It is a control center for body temperature, hunger and blood pressure. ये इसके functions है. Midbrain जो है, it is located between the thalamus of the forebrain and the hindbrain. तो ये वाला पार्ट जो है, दिस इज द, ये नीचे हाइंड ब्रेन है, ये ऊपर मिड ब्रेन है, इनके बीच में जो पार्ट है ये मिड ब्रेन है. It connects forebrain and hindbrain and it has reflex center for eye movement and ear response. इसका ये फंक्शन है, ये आपने लर्न करना है. और जो हाइंड ब्रेन है उसके 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स है. ये फोरब्रेन हो गया, देन मिड ब्रेन, then hindbrain. hindbrain के पार्ट्स हैं pons, medulla oblongata and cerebellum. ये है pons of Verolli, ये नीचे medulla oblongata और ये पीछे ये cerebellum. इसको लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं. हाइंड ब्रेन के पार्ट्स क्या है? pons of Verolli, cerebellum and medulla oblongata. जो pons है, it acts as a bridge carrying all the sensory and motor neurons between the brain and the spinal cord. जो cerebellum है इसको लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज लिटिल ब्रेन. It is present somewhat at the back of the head and it is associated with maintenance of body posture और equilibrium maintain करता है. Then जो medulla oblongata है इसको brain stem बोलते हैं. brain stem. और ये spinal cords तक continue करती है and it has reflex centers for heart, respiratory and many inner body activities. Controls the heartbeat, breathing and respiratory functions, swallowing, coughing, sneezing. And any damage to it can cause paralysis or immediate death. Then आपने any 2 differences कर लेने हैं बेटा between cerebrum and cerebellum. अगर आपको पेपर डिफिकल्ट आएगा तो ये आ सकते हैं. Next is the spinal cord.
It is the tubular cylindrical structure that extend from the medulla oblongata. यहाँ medulla oblongata यहाँ पे आके खत्म होती है, वहां से ये tubular structure जो extend कर रही है, this is the spinal cord. And it is also surrounded by three membrane, three meninges है. कौन कौन सी? pia mater, dura mater and arachnoid mater. A distribution of gray and white matter is just the reverse of what is present in the brain. इसमें क्या है? ग्रे मैटर एट द सेंटर है, ब्रेन में ग्रे मैटर आउटसाइड था, एंड व्हाइट मैटर इज प्रेजेंट ऑन आउटसाइड. ये एच की शेप में जो ग्रे मैटर है, ग्रे मैटर जो है वो एच शेप्ड होगा, अरेंज. There are 31 pairs of spinal nerves. Spinal nerves arise from the spinal cord. तो इसके फंक्शंस क्या है? It relays messages between the brain and the rest of the body. It has nerves. कौन सी nerves है? Spinal nerves है, that carry information from the body organs to brain and carry messages from the brain to the organs. ब्रेन से ऑर्गन तक, ऑर्गन से ब्रेन तक लेके जाती है मैसेजेस. It controls many involuntary reflex actions. तो नर्व क्या है? नर्व इज अ, ये स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो गया, देन nerve is a collection of nerve fibers enclosed in a connective tissue sheath. और एक जो नर्व फाइबर है, नर्व फाइबर इट कंप्राइजेज ऑफ एक्सॉन और डेंड्राइट. नर्व फाइबर है जो नर्व फाइबर इट कंप्राइजेज ऑफ एक्सॉन और डेंड्राइट. न्यूरॉन क्या है? इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. इट रेफर टू सिंगल नर्व सेल. इट रेफर, न्यूरॉन किसे बोलते हैं? सिंगल नर्व सेल को. नर्व सेल को न्यूरॉन बोलते हैं. देन अभी मैंने आपको बताया देयर आर 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स एंड क्रेनियल नर्व जो ब्रेन से निकलती हैं, वो कितनी है? क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर्स, ये 31 पेयर्स है. टाइप ऑफ न्यूरॉन्स जो हैं 3 टाइप्स हैं, सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड. सेंसरी जो है स्टिमुलस टू द ब्रेन लेके जाती है, टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. मोटर जो है स्टिमुलस फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड टू मसल्स एंड बॉडी ऑर्गन्स लेके जाती हैं. मिक्स्ड जो है इनमें बोथ नर्व फाइबर्स हैं, सेंसरी भी है एंड मोटर भी है. It contains both sensory and motor neurons. Through sensory nerves, it carries stimulus to the CNS और जो मोटर है वो from the CNS मैसेज लेके जाएगा. क्लियर बेटा? 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स हैं. फंक्शंस ऑफ नर्व, ये भी हमने किया है. स्टिमुलस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टू CNS लेके जाती हैं, मैसेज
फ्रॉम द CNS टू द बॉडी ऑर्गन लेके जाती है। देन स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन है बेटा, ये आपको डेफिनेटली पेपर में आएगा, बनाना भी आ सकता है, लेबलिंग भी आ सकती है, इट इज 100% श्योर। डायग्राम ऑफ न्यूरॉन, तो ये सिंपल सा डायग्राम है, ये आपने बनाना है। न्यूरॉन है, उसकी एक सेल बॉडी है, सेल बॉडी की ये जो ब्रांचेस हैं ये डेंड्राइट्स हैं, और ये लंबी सी जो है ये एक्सॉन है। यहाँ पे गलत है, ये आपने एक्सॉन ये आपने काट देना है, ये एक्सॉन नहीं है, दिस लॉन्ग वन अनब्रांच जो है एक्सटेंशन दैट इज एक्सॉन, और ये एंड ये है टर्मिनल एंडिंग, नर्व एंडिंग है ये, और इसकी ये जो शीथ है दैट इज न्यूरीलेमा, इसके बाहर जी है, और ये जो अंदर है दैट इज माइलन शीथ जो इसको प्रोटेक्ट करती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन इज रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन एक फटाफट एक्शन है विच इज परफॉर्म विदाउट थिंकिंग। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? इट इज अ रैपिड एंड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स without thinking. It is involuntary, not under our will. अगर बेटा आपको कोई नीडल प्रिक हुई है तो आप फटाफट फिंगर पीछे कर लोगे, या करंट लगा है कहीं कहीं से तो फटाफट फिंगर पीछे कर लोगे। तो ये सारे क्या है, दे आर द रिफ्लेक्स एक्शंस। यहाँ पे ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, जो स्टिमुलस है प्रिक हुई पिन स्किन पे, वो सेंसरी न्यूरॉन उसको लेके गया कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड पे, और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज फिर मोटर न्यूरॉन लेके गया इफेक्टर ऑर्गन तक, और हमें प्रिक महसूस हुई और हमने हाथ पीछे को कर लिया। दिस इज सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन, और ये रिफ्लेक्स एक्शन की डायग्राम है, ये है रिफ्लेक्स एक्शन की डायग्राम। रिसेप्टर स्किन है, सेंसरी न्यूरॉन है, फिर स्पाइनल कॉर्ड आ गई, वहां से मोटर न्यूरॉन, इफेक्टर ऑर्गन। ये सेम है, प्रिक हुई स्टिमुलस, सेंसरी न्यूरॉन लेके गया स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड से फिर मोटर न्यूरॉन इफेक्टर ऑर्गन तक लेके गया। तो रिफ्लेक्स एक्शन जो है, इट प्रोड्यूसेस रैपिड रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस because the sensory neuron passes the information to the motor neuron in the spinal cord without the involvement of brain. Examples of common reflex action है, response of hand or leg to accidental pin prick, eyes close when the hand is moved in front of the face, constriction of pupil in the bright light, coughing or sneezing when unwanted particles enter the nose or throat. एक साइंटिस्ट था बेटा पैवलोव, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसने ना एक हंग्री डॉग को ना फूड दिया, ये ऐसे नहीं स्टार्ट होता, उसने ना पहले बेल रैंग की, फिर उसने डॉग को फूड दिया। ही कॉन्टिन्यूड दिस सेवरल टाइम्स। तो अब क्या होगा, जब बेल रैंग की, शुरू में जब बेल रैंग की तो उसने डॉग डिड नॉट सलाइवेट, डॉग के मुंह में से सलाइवा नहीं आया और उसने फूड दिया, फूड खा लिया। बाय रिपीटिंग दिस एक्सपेरिमेंट नंबर ऑफ टाइम, तो डॉग ने क्या कर लिया, फिर बेल
कि रिंग को फूड के साथ एसोसिएट कर लिया उसने। अब जब भी बेल रिंग करती थी तो डॉग के मुंह में से सलाइवा आना शुरू हो जाए। This is because dog associated the sound of bell with the food. तो ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है। ये पैवलोव ने एक्सपेरिमेंट किया था। यस बेटा, विद दिस आवर चैप्टर इज कंप्लीट। नाउ इसका माइंड मैप है। हाँ जी, सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्राइज ऑफ ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। हार्ट की वर्किंग मैंने पिछले वीडियो में बताई थी आपको। डबल सर्कुलेशन भी बताई थी, भी ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट ट्वाइस टू कंप्लीट वन सर्कुलेशन। सिस्टेमिक और पल्मोनरी की भी बताई थी मैंने आपको। ये ब्लड फ्लो का भी चार्ट बना के बताया था। लिम्फेटिक सिस्टम का भी बताया था। आज हमने किया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी सिस्टम के बारे में बताया आपको। देन रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में बताया, वो एक्शन जो होता है विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ ब्रेन। रैपिड रिस्पॉन्स होता है थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड, उसे हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। हाँ जी, विद दिस आवर चैप्टर इज कंप्लीट। तो उम्मीद करती हूँ भी आपको टॉपिक मैंने बहुत ही ज्यादा इजी वे में कराया है, आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है, आपने कुछ भी पूछना है, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछने हैं, कोई पेपर में आ सकता है कुछ वो पूछना है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। अक्सर ऐसा होता है कि जो जिनको मैं बोलती हूँ कि ये एग्जाम में आएंगे तो वो आ जाते हैं अक्सर डायग्राम्स। और ये जो डायग्राम है ये हर बार पेपर में आता है। बनाना भी आता है और लेबल करना भी आता है, बोथ लेबल एंड ड्रॉ, ये दोनों ही करने हैं आपने। ये रिफ्लेक्स एक्शन का पार्ट है, ये आपने इतना, ये आपने बनाना सीखना है, डायग्राम सीखना है आपने, ये लेबलिंग करनी है। इसके भी लेबल ही करनी है, इसकी भी लेबल ही करनी है। ठीक है बेटा? Okay, thank you for watching. Have a wonderful day.